Right. So let's start, everyone. And then people will start trickling in. So, Ariba, can we go to the next slide, please? Right. So, Assalamu alaikum, everyone. I hope all of you are doing well. I hope all of your exams went well as well. And now all of you will be getting your preparation towards the AQ exam and then the MDCAT. So, premed.pk brings to you the AQ guidance webinar that was highly requested for in the past 2 weeks. We were just waiting for everyone to get done with their exams, whether it was Inter, FSC, or A levels, so that we could have the session for everyone. So I would like to introduce the amazing speakers we have tonight for our session. The first is obviously me. My name is Sisnan Mankani. I'm actually a fourth-year medical student at the Aga Khan University and also the co-founder of Premed.pk. We have Abdul Rahman, who is the AQ class of 2028. We have two of his batchmates over here as well, Abdullah Nasir and Vansh Talwani. So the reason why we've chosen these speakers is because so we were going through the list of people who get admission at AQ, and I was trying to cover as diverse of a panel as possible so that we could cover all aspects of how to apply for AQ, whether you are an inter student, whether you are an A-level student, or whether you are a gap year student like me. So next slide, please. Right. So what I would really suggest is कि सब लोग अब जब बैठे हैं यहाँ पे तो एक पानी का ग्लास रख ले अपने साथ में because it's going to be a long session around an hour इंशाल्लाह. इसके साथ में दूसरा ये है कि take a notebook and just note down the pertinent points जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं because मैं सबको एक बात समझाना चाहता हूँ before we start the discussion कि जो AQ का एग्जाम है ना it's not your average A level or FSC inter और MD कैट एग्जाम सेकेंड इट्स वेरी डिफरेंट एग्जाम सो जो लेकर आता है वो बताता है हमेशा कि यार AQ का एग्जाम एक ऐसी चीज है आप हमेशा याद रखते हो व्हेन यू गो टू द जिम्नेजियम और योर रिस्पेक्टिव टेस्ट सेंटर यू रियलाइज कि यार इस एग्जाम में ना दिमाग लगाना पड़ा एक एग्जाम में ना थोड़ा सोचना पड़ा वॉज इन योर एवरेज के आप बस गए अगर आता है तो आता है नहीं आता तो अल्लाह हाफिज इस तरह नहीं होता सो दिस इज व्हाई यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द AQ एग्जाम इन द बेस्ट पॉसिबल वे we're going to be imparting you guidance on how to prepare for it in the best academic way and at the same time iske saath mein also how to prepare for it in the best mental way so then you have to be prepared mentally कि किस तरह AQ का एग्जाम होगा क्या उसका पैटर्न है किस तरह फॉर एग्जांपल लाइक एग्जाम होता है कब रिजल्ट आता है and all of these things make a big difference. I've seen people who prepare very well. There's a very famous saying कि before you start cutting the tree sharpen your axe. So the idea being that you have to just make sure कि आपकी पूरी जो mentality है वो ready हो ताकि आप एग्जाम में अपने बिल्कुल 100% गेम के साथ जा रहे हो सो कंटेंट्स में हम लोग यहाँ पे आज टेस्ट पैटर्न की बात करेंगे वंश विल टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एज वेल विल टॉक अबाउट रिसोर्सेज दैट विल बी कवर्ड बाय अब्दुल्ला एडवाइज्ड टेक्स्ट बुक्स सो अभी इस टाइम पे आप क्या टेक्स्ट बुक यूज करें एंड एट द सेम टाइम क्या स्टडी टेक्निक होनी चाहिए सो दैट्स द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस वेबिनार नेक्स्ट स्लाइड प्लीज Ariba, next slide please. Right. Acha. So apart from that, again, Minister Bataya, insights for the test preparation, we'll cover that. A very important aspect, MDCAT versus AQ. So Abdullah will cover that as well, and I will also try to add in. So the idea being कि basically बच्चे हमें पूछते हैं कि सर obviously अब तो आपने AQ के लिए apply कर लिया तो कर लिया, you will be given the exam, but एक motivation factor होता है, कि यार is AQ really worth it? It's around 30 lakh rupees की fees if you don't get scholarship or aid. और हमारी एक वीडियो उसके ऊपर भी है if you want to get scholarship or aid at AQ. But इसके अलावा भी is it worth that much money even if you can afford? So I'll cover that aspect as well and how it differs from the actual MDCAT exam. इसके साथ में time management, which is I think the most important thing in the AQ exam. अगर आप एक चीज इस सेशन से लेकर जाओगे ना, that is time management. अगर आप वो नहीं कर पाओगे, you will miss out a lot of questions. It's only 100 questions by the way. And अगर एक एक सवाल भी आप miss कर रहे हो, it's gonna change the entire landscape of your admission. High yield chapters, so we'll discuss that as well. Abdul Rahman will discuss that, and also personalizing your own schedule ताकि आपकी तैयारी in the next 2 months बिल्कुल सही तरीके हो सके. And at the end, we have a very exciting news for all of you. So just make sure to watch till the end. Don't leave in the middle because honestly हम बिल्कुल end तक एक एक fact वो बता रहे होंगे जो आप अगर आज practice कर लो तो आपका AQ admission पक्का पक्का हो सकता है इंशाल्लाह. ठीक है? Next slide please. Right. So as far as the test pattern is concerned,
सो बेसिकली मैं बताना चाहूंगा टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स राइट नाउ कि जो AQ का टेस्ट पैटर्न है वो हाल ही में चेंज हुआ है। सो इससे पहले वी हैड अ डिफरेंट पैटर्न बीइंग फॉलोड बाय बेसिकली जो साइंसेस थे, सो इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो इसके अंदर बेसिकली यू वुड हैव 20 क्वेश्चंस ईच। देयर एक्चुअली सम इमोजी रनिंग बिहाइंड मी, जस्ट लीव दैट। एंड इसके साथ में देयर वुड बी बेसिकली मैथमेटिक रीजनिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग। तो इसके 20-20 सवाल होते थे। नाउ दे एक्चुअली चेंज द एंटायर सिस्टम एंड नाउ उन्हें इस तरह कर दिया कि जो साइंसेस थे, सो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो कम कर दिए, व्हिच इज सॉर्ट ऑफ बैड फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर मैथ्स एंड SR काफी बच्चे उसमें स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो अगर उसमें ज्यादा सवाल आ रहे हैं तो किड्स विल बी स्ट्रगलिंग। बट डोंट वरी, वी विल कवर ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स, ठीक है। इसके बाद लास्ट स्लाइड आई थिंक मेरी है। सो ओवर टू द आवर पैनल टू टेक ओवर द स्लाइड्स एंड टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक सेक्शन। Right, so I'll be talking about the frequently asked questions about the AQ test. So the first one is, when is the AQ test? So if you go onto their websites, there are all the important dates given on when the application ends, which is already ended. And the test is on July 21st. And then there's this whole process of stage 2 interviews and everything. So the test is on July 21st. So do you have to take the MDK test as well? So in Pakistan, it is a requirement to take MDK test to be able to study medicine in any university, whether private or government, right? So you have to pass the MDK test, but you don't have to score really high to be eligible to get into AKU in that aspect, but you have to pass the test to the passing ratio of the MDK that is set by PMDC, which is 55%. So you do have to take the MDK test and pass it as well to be able to get into AKU. Right. So can you go on to the next slide? So the required marks for FSC is 70%. You have to be eligible. So the criteria is 70%, and if you're an OA level student, you have to have satisfactory passing ratio in the science subjects like biology, physics, and chemistry, and English, I think. So these are the required marks and criteria that you have to fit into to be able to sit for the AKU exam. So I don't think you need a domicile for the admission, because it is open to everyone nationally and internationally. So you don't really need a domicile to apply to AKU, right? Extracurriculars activities do matter in AKUs. If you're able to pass the test, that you will receive a stage 2 form, which will include some categories where you'll be asked to put in your extracurriculars, right? So they do assess you based on how good those extracurriculars are and how many are those, but they do see where you're coming from. So if you're coming from a place where you don't have a lot of opportunities, where you don't have a lot of things happening in your school, your colleges, so they don't expect you to have tons of extracurriculars, but they want to see that you have used up all the opportunities that you were given, right? So if you're from some remote area in Sindh, you should have at least some extracurriculars to sell yourself, as to you have done something and you're ambitious. You don't just study; you have done something to enhance your personality and your skills and everything. So yes, extracurriculars do matter to get into AKU, but it is taken into consideration as to where you're coming from and what opportunities you had. So scholarships, there are scholarships. So uh, based on the admission test, there are 5 scholarships given to those who need it have and are like high achievers. So everyone who applies for financial aid and those who are selected for it, the 5 of those who have maximum score get the 100% scholarship for the 5 years. So those 5 people get a scholarship. Other than that, if you get into AKU and you are among the 15 top scorers of your class, you again get some scholarship for the next year. So those are the scholarships at AKU.
So that was the scholarship we talked about. Other than that, there is financial aid. Uh, with the acceptance email, they send you a link to a form, which is financial assistance form, where you'll be asked of your assets, your properties, your like everything that is useful in assessing your financial background and your financial status at the moment. And according to that, you'll be given financial aid in the form of loan and scholarship. So some of it is scholarship and some of it is loan. The scholarship is not paid back, but the loan you have to pay back after 7 years, right? So that's the scholarship at AKU and financial aid. So if you have less than 70% in your FSC, right, that's what it means. If you have less than 70% in your FSC, I don't think you can apply because you don't fit into the criteria that AKU has set. So you have to have 70% or more in your FSC to be eligible to apply for AKU test. So for AKU test, the aggregate changes every year. There, just like the TASTE patron was explained, there are two portions of the AKU test. There's science reasoning portion and then there's science portion. So that you have to pass both the portions separately. So if you pass one portion and not the other, you do not get in. If you pass both the portions, right, that is when you get in. So the aggregate changes every year. So the last year it was 63% for both the portions, and it changed. It has to, I mean, it's supposed to change every year, but the highest it's gone is probably 69 or less, not more than that, as far as I know, right? So the cutoff for not every subject, but both the portions separately. So even if you have like let's say 60% in physics, but the cumulative score of your science portion is more is is like fine in terms of the cutoff, you'll be able to pass the test. So not every subject, but each portion. Right? Can we move on? All right, but can we move on to the next slide? So the total fee for 5 years. So for 1 year, it's almost 3.5 million. So if you multiply by 5, it goes to around 16 million for 5 years, right? So, but if you go onto the website, there is a whole fee structure given, which you can check out and see. So you can sit for AKU MBBS test twice now. Before last year, it used to be 3 times, but since last year, they have changed it to twice. So you can give the test twice and no more than that. So if you're from pre-medical FSC background, it is obviously really hard to go back to mathematical topics and, you know, prepare those. But we do have some high yield basic math topics in the lecture slides for you, which you can practice on. But I think that the questions are pretty much from the basic information that with some practice and some understanding, you can easily be able to attend. So if you just practice a bit and seek help from YouTube and other resources, you'll be able to answer a lot of questions, even if there's some question that is not very basic. So remember, you don't have to get all the questions right, but just enough to pass the test. So yeah, so like work on your basic maths, and I don't think it's going to be really hard if you have good understanding and if you also like if you're like good in maths, I guess you'll be able to answer most of the questions and will be able to grasp the concepts I think pretty easily. Thank you, Vansh. Now I'll pass the mic over to Abdullah to cover the next sections of our presentation. Okay, Assalamu alaikum everyone. So this is the portion of the test, the thing that most people are really nervous about. So when
we talk about the test pattern, इस चीज की बात आती है कि many people hear that there is negative marking in the test, और बहुत सारे लोगों ने इस टाइम तक negative marking का सुना भी नहीं होता, मतलब they cannot even like most of the students in FSC और A levels उन्होंने कभी भी negative marking अपने टेस्ट में experience नहीं की होती, और उनको इस बात का आइडिया नहीं होता कि नेगेटिव मार्किंग वाले टेस्ट को हमें किस तरह टैकल करना है। तो इसका बेसिक आइडिया ये है कि आपने जो अपना टेस्ट है वो अटेम्प्ट किया, एंड देयर आर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और उसमें आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपने गलत किए हैं उसकी एक्स्ट्रा पेनल्टी होगी। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स टेक फॉर द साइंस पोर्शन, ठीक है। In science portion, there are 50 questions, or each MCQ has 50 marks. So, for example, you attempt all of the 50 questions and you get 30 questions right. So, इस हिसाब से if there was no negative marking, you would have gotten 30 out of 50. लेकिन because अभी हमारे पास negative marking है, you would also be having a penalty for the rest of the 20 questions that you got wrong. So, for example, जो AQ का टेस्ट है इसके अंदर negative marking का criteria ये है कि for each question that you get wrong, you are deducted 0.25 marks from the total result of that portion. So basically, for example, let's say you attempt all the questions in the science portion, और सिर्फ और एक और बात I think I missed out, so only the science portion has negative marking, जो रीजनिंग पोर्शन है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग मतलब एप्लीकेबल नहीं है। वो रीजनिंग पोर्शन को इन्हें इस तरह से एक तरह से इस तरह में इजी रखा हुआ है कि हम जो है अटेम्प्ट जो है कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस, और उसके में कोई पेनल्टी नहीं होगी। लेकिन साइंस पोर्शन में हमारे पास इस तरह से है कि इफ वी अटेम्प्ट ऑल ऑफ द 50 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चंस वी गॉट राइट और 20 क्वेश्चंस वी गॉट रॉन्ग, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने वो 20 मार्क्स जो है वो लूज किए हैं, और इसके ऊपर हमने अगर हम 20 का 0.25 लेते हैं, let's calculate it real quick, ठीक है। 0.25 into 20, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने 20 क्वेश्चन अगर गलत किए हैं और उसमें से हर गलत क्वेश्चन का 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब आपके जो साइंस पोर्शन है उसमें आपके आएंगे 30 आउट ऑफ 20, इसमें हम 5 मार्क्स और डिडक्ट करेंगे, तो फिर इसमें आपके बनते हैं 25 आउट ऑफ 20, जो कि आपका टोटल जो परसेंटेज बनती है साइंस पोर्शन की, दैट मेक्स इट 50% आउट ऑफ व्हाटएवर द थ्रेशोल्ड इज। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है कि यू हैव टू लीव क्वेश्चन दैट यू डोंट नो, जो आपको क्वेश्चन नहीं आते और द क्वेश्चन दैट यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू गेट रॉन्ग, वो भी आपको मतलब स्किप करना है। क्योंकि अगर आपने उनको कर लिया, आपने उनको अटेम्प्ट किया और आपने वो क्वेश्चन गलत किए, तो उसकी फिर आपको पेनल्टी मिलेगी। So deciding which question you have to attempt and which question you have to leave is also a very important factor of the test, जो कि आपको सीखना पड़ेगा प्रैक्टिस के साथ साथ, और this will take some practice। मेरे लिए भी नया था और बाकी सबके लिए भी नया था, लेकिन it is possible, it is doable, सब करते हैं, और आपने भी सीखना है और आपने भी ऐसे ही करना है। So closing percentages in the recent years में पहले हमारे पास सबसे टेस्ट पैटर्न था वो भी डिफरेंट था। जो हमारे पास साइंसेस का पोर्शन था उसके अंदर हमारे पास 60 क्वेश्चन होते थे, और मतलब 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, तो 20 क्वेश्चंस हमारे पास बायो के, 20 फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के। तो टोटल जो क्यूमुलेटिव साइंस पोर्शन का जो थ्रेशोल्ड था, इट यूजुअली हवर्स अराउंड 65 to 62% के बीच में ज्यादा हवर करता है, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चले जाए तो 69 तक भी जाता है, लेकिन वी हैवंट हर्ड ऑफ इट गोइंग अबव 70%। तो जब आप प्रैक्टिस करें तो उसमें आपका जो गोल होना चाहिए दैट शुड बी कि आपने मिनिमम उस सेक्शन के अंदर 70% के अबव स्कोर करना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो रीजनिंग पोर्शन है उसके अंदर भी जो रिसेंटली थ्रेशोल्ड अभी चल रहा है, रीजनिंग पोर्शन के अंदर भी 22 पोर्शन होते हैं ना, एक हमारे पास मैथ्स का होता है और एक हमारे पास उसका साइंटिफिक रीजनिंग का होता है। तो 20 क्वेश्चंस मैथ के, 20 क्वेश्चन साइंटिफिक रीजनिंग के, और उसके अंदर फिर 40 क्वेश्चन होते हैं, तो उसका भी थ्रेशोल्ड भी उसका भी अराउंड 60 to 65% के बीच में होवर कर रहा होता है। तो लास्ट ईयर द थ्रेशोल्ड वाज 63% फॉर बोथ द पोर्शंस,
तो 2022 के अंदर the threshold was 62% for both the portions. Now the test pattern has changed, लेकिन still I don't think so कि test इसका जो threshold है that is going to change a lot. I think it is going to remain around the same areas. तो आपने जब प्रैक्टिस करनी है उस टाइम पे आपका जो गोल होना चाहिए that should be that you have to score above 70% in both of the portions to consider yourself like in the safe zone. Okay, you consider yourself well prepared. So that was the idea कि जो negative marking का आपने किस तरह से manage करना है. So if you can move on to the next slide. Okay. So concepts की बात आती है. Concepts के बारे में जब students, especially FSC के students, उनको बहुत मतलब एक तरह से होता है कि यार क्योंकि FSC, I know FSC की जो studies हैं, there are उसमें भी concepts हमें लगाने होते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मतलब road learn करनी होती हैं. तो उनको एक तरह से जब मतलब ये बात सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने जो भी आपने चीज़ सीखी है, आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, वो डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड आपसे नहीं पूछा जाएगा. आपने उसको उसकी चीज़ को समझना है, उसका कॉन्सेप्ट जो है, उसकी थ्योरी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को अप्लाई करनी है और उसका सोल्यूशन निकालना है. सो कॉन्सेप्ट्स को आप किस तरह क्लियर कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जिस भी आपने बोर्ड से पढ़ा उसके अंदर जो भी एक पर्टिकुलर चीज़ का कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इट हैज़ वर्क एनर्जी पावर के अंदर फोर्स का कॉन्सेप्ट है, तो फोर्स के अंदर आपके पास डिफरेंट उसमें वेक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं. तो आपने ये भी देखना है कि वेक्टर्स में किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं. वेक्टर्स उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है और वो आपने ये देखना है कि वो फॉर्मूला किस तरह से यूज हो रहा है, फॉर्मूला क्यों यूज हो रहा है, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो क्यों इस तरह से यूज हो रहे हैं. इसके अंदर जो कोसाइन की वैल्यू आती है cos थीटा, FD cos थीटा, आई एम श्योर यू गाइस नो कि किस तरह से वो चीज अप्लाई हो रही होती है. सो यू शुड नो एंड यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि ये चीज इस तरह से क्यों अप्लाई हो रही है. और इसको सीखने के लिए यू हैव टू स्टडी योर बोर्ड बुक्स, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ MCQs. और आपने आगे मैं रिसोर्सेज की बात करूंगा. यू आल्सो हैव टू रेफर टू सेट क्वेश्चंस क्योंकि वो बहुत थ्योरेटिकल होता है. और इन सारे रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करके ही आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं. और यू शुड ट्राई टू मिनिमाइज रोड लर्निंग, मतलब स्पेशली साइंसेस के अंदर और फिजिक्स के अंदर आपने चीज़ें याद नहीं करनी, आपने उनको एक कॉन्सेप्ट्स को समझना है और उनको डिफरेंट MCQs और प्रॉब्लम्स अप्लाई करना है. तो कॉन्सेप्ट इंप्रूव करने का ज़्यादा अच्छा तरीका ये भी है कि आपने एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया और उसका पूरा कंप्लीट उसकी स्टडी करने के बाद आपने उसके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा MCQs किए. सो बायो मैं भी इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात लिखी हुई है, लेकिन बायो में थोड़ा सा टचअप करना चाहूँगा कि आई नो फिजिक्स के जब हम AQ टेस्ट की तैयारी करते हैं उसके अंदर भी वी नीड थोड़ा सा मेमोराइजेशन हमें रिक्वायर्ड होती है. स्पेशली बायो की पोर्शन के अंदर वी नीड अ लॉट ऑफ मेमोराइजेशन. बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर याद करने वाली भी होती हैं जो आपको याद करनी पड़ती हैं. और इवन जो स्टूडेंट्स को लग रहा हो कि मतलब हम AQ का टेस्ट दे रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल वगैरह होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद करनी पड़ेंगी. हमारे पास डिफरेंट जो वो होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनकी पाथवेज होते हैं, उनकी जितने भी बीच में इंटरमीडिएट्स होते हैं वो सब हमारे याद होने चाहिए. और स्पेशली केमिकल स्किल चैप्टर्स है उसके अंदर हमें चीज़ें याद करनी पड़ती हैं. लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो बीच में बायो के साथ डिफरेंस ये है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स इज अ लॉट मोर थ्योरेटिकल. केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने वाली, लेकिन फिजिक्स इज इंटायरली थ्योरी बेस्ड. फिजिक्स के भी लास्ट ईयर जो मैंने टेस्ट दिया था उसके अंदर काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे फिजिक्स के भी और साइंटिफिक रीजनिंग के भी. जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से फिजिक्स के भी थे. मतलब मैं बात करूंगा कि उसके प्रेपरेशन जो है वो किस तरह से डिफरेंट है. आई थिंक उनका थोड़ा सा टेस्ट पैटर्न चेंज हो रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअल साइंसेस की कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो उसके अंदर भी आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए. केमिस्ट्री के अंदर उसका प्रिपेयर करने का तरीका ये है कि यू लाइक ओपन योर बोर्ड बुक और उसके अंदर लेट्स से एटॉमिक स्ट्रक्चर आप कर रहे हैं, ठीक है. तो उसके अंदर आई थिंक अरीबा हैज लेफ्ट सम रीजन, मुझे स्लाइड नजर नहीं आ रही. Abdullah, you can continue telling about that and then Ariba will join herself. ओके श्योर, ठीक है. तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर लिया और उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और
उसमें ना डायग्राम्स वगैरह मतलब काफी सारे आपने देखे होंगे, और ये कि किस तरह से एक स्पेशल जो इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रो जो जो इलेक्ट्रॉन, आई एम सॉरी आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट, फॉर एग्जांपल हाउ टू कैलकुलेट द मास और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका पूरा उन्हें एक सेटअप बना के आपको समझाया हुआ होता है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है उनके पास तो ये होता है, और उसकी इस तरह से उनके रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा होता है, और फिर उन्होंने साथ साथ बताया होता है कि ये फॉर्मूलाज हैं और ये कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसको यूज करके फिर आपने ये चीज फाइंड आउट करनी होती है। तो केमिस्ट्री के अंदर थोड़ी सी याद करने चीजें ज्यादा हैं, तो आपको इसमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हाट द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर केमिस्ट्री। और इसके अलावा फिजिकल जो केमिस्ट्री है उसकी तो ज्यादातर बात यही होती है कि आपने थोड़ी सी इस तरह के जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं, उसके डायग्राम्स वगैरह हैं, और उसके जो किस तरह से उसका मैकेनिज्म चलता है वो आपने याद करना है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है केमिस्ट्री का, दैट इज आल्सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic chemistry is very high for the AQ test, और if I if I suggest myself, आपको सबसे पहले अपने फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टोइकियोमेट्री कर लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया, कोई भी जो इनिशियल 2-3 चैप्टर्स हैं, उसके बाद यू सोली फोकस ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने जो भी ए लेवल्स की अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, और आपने अपनी एफएससी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, टू मेक दैट एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जितने भी आपने ए लेवल के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जितने भी आपने एफएससी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, यू हैव टू रिटेन ऑल ऑफ दोस टू बी एबल टू अप्लाई दैट इन द एक्यू टेस्ट। और जितनी भी चीजें आपने याद की हुई हैं, दैट आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी हाई, उसके जितने भी सारे रिएक्शंस होते हैं, उसके सारे पाथवेज होते हैं, सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं, कंडीशंस वगैरह, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी एक्यू टेस्ट के लिए। लेकिन इसको मैं ये नहीं कह रहा आप इसको रोट रन करें, लेकिन अगेन मैं उसी बात पे जा रहा हूँ कि जब आप इसको ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करेंगे, तो उससे फिर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस बेहतर होगी, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं केमिस्ट्री के अंदर, दैट विल आल्सो इम्प्रूव। तो ओवरऑल आप केमिस्ट्री को इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। फिजिक्स का भी यही सीन है, फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं। उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जरूरी याद करने वाली चीज़ें हैं, दोज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सारे फार्मूलाज याद करना है, इसमें इसका ना बेसिकली जो अप्रोच आपको रखनी चाहिए वो ये है कि आपने एक फार्मूला लिया, उससे आगे बहुत सारी डेरिवेशंस होती हैं, उसको फार्मूला को समझने के लिए ये फार्मूला किस तरह ड्राइव हुआ, इसको हम किस तरह यूज कर रहे हैं, और उस डेरिवेशन को आपने समझना है ताकि उस फार्मूला को आप मैनिपुलेट कर सकें किसी भी और डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूला बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन के अंदर ऐसे बहुत सारे फार्मूलाज हैं टॉर्क के, एंगुलर एक्सेलरेशन के, दैट आर इंटरचेंजेबल। तो अगर आपको एक बेसिक इनिशियल फार्मूला जो है सर्कुलर मोशंस का अगर आपको याद है, तो वो आप बीच में आपको इंटरचेंज कर सकते हैं बहुत इजीली, और आपको सारे फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्हेन यू आर रिक्वायर्ड, तो आपको वट एवर फार्मूला दैट यू आर रिक्वायर्ड एट द मोमेंट, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको उसकी डेरिवेशन पता है, यू कैन इंटरचेंज दैट वेरी इजीली, और आप जो एक्चुअली करेक्ट फार्मूला दैट इज रिक्वायर्ड आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें डेरिवेशंस आपको अच्छी याद होनी चाहिए, डेरिवेशंस आपको पता होनी चाहिए, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो आपको पता होनी चाहिए, और सारे कांस्टेंट जो हैं, क्योंकि एक्यू टेस्ट के अंदर आपके पास कांस्टेंट्स जो हैं वो नहीं दिए हुए होते, तो वो आपको पता होनी चाहिए। और एक और चीज़, कैलकुलेटर जो है वो भी एक्यू टेस्ट के अंदर अलाउ नहीं होता, तो आपने अपनी प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस के थ्रू ही अपना जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, आपने किस तरह से मुश्किल कैलकुलेशंस को सॉल्व करना है बगैर कैलकुलेटर के, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी होती है। क्योंकि एफएससी के अंदर भी आई बिलीव, और ए लेवल्स के अंदर कैलकुलेटर इज अलाउड, तो आप कोई भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगी, यू जस्ट इनपुट इन योर कैलकुलेटर और वो जल्दी से हो जाती है। लेकिन एक्यू टेस्ट के अंदर टाइम क्रंच इज अ वेरी रियल थिंग, बहुत कम टाइम होता है एक्यू टेस्ट के अंदर, यू डोंट इवन हैव टाइम टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट द क्वेश्चन। तो उसके अंदर आपको अपने जो कैलकुलेशंस हैं, यू हैव टू मेक दोज एज सिंपल एज पॉसिबल और एज क्विक एज पॉसिबल। तो ये डिफरेंट टेक्निक से भी आपको आता है, और ओवर टाइम जो आपके प्रैक्टिस होगी, और ओवर टाइम जो आपका तरीका होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, यू विल फाइंड आउट कि ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी, ये चीज़ ज़्यादा एफिशिएंट है, और मुझे जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए ये करना चाहिए। तो ये ओवर टाइम प्रैक्टिस आएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब हर स्टूडेंट के लिए बहुत सब्जेक्टिव होती हैं, हर
स्टूडेंट को अपनी डिफरेंट तरीके से समझ आता है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर, यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ कि क्या चीज़ मेरे काम कर रही है, ज़्यादा अच्छा कैलकुलेशन का तरीका ये क्या है, और उसको आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के अंदर अप्लाई करना है ताकि आपकी कैलकुलेशंस सबसे ज़्यादा क्विक और एफिशिएंट हो, ताकि आपको उसमें टाइम वेस्ट ना हो। Okay, I think I was on the how to prepare for the chemistry or physics वाली slide, तो उसके बाद क्या है? I think we should go back. I think this was not the slide we were on. Let's go back once more. Go back once more. Okay, हाँ, ये वाली slide हमने cover कर ली थी. Okay, next slide. अच्छा, सो इफ यू प्रिपेयर फॉर द एमडीकैट सिलेबस आपका और सेट मैथ, तो आपका क्यू टेस्ट क्लियर होगा या नहीं? सो दिस इज मतलब बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ, उन्हें कंप्लीट एक्यू सिलेबस कवर नहीं किया था। मैंने भी कंप्लीट एक्यू सिलेबस कवर नहीं किया था, और फ्रैंकली होता भी नहीं है। लेकिन यू डू नॉट आई डू नॉट रिकमेंड कि आप इस इंटेंशन से जाओ कि आपने एक्यू सिलेबस कवर करना ही नहीं है कंप्लीटली। आप सिर्फ I will say this again, और this is very important, आप सिर्फ MDCAT syllabus पे rely नहीं कर सकते। If you only do the MDCAT syllabus, it is going to be difficult for you to pass the AQ test, क्योंकि AQ test के अंदर जितना भी उसके, क्योंकि even though the list of the chapters that are in the AQ syllabus जो कि actual में test भी होते हैं, और those that are in the MDCAT syllabus, even though they look similar, आपको ये जानना जरूरी है कि जो MDCAT सिलेबस है दैट इज वेरी वाटर्ड डाउन, उसके अंदर बहुत चीज़ें सिंपल की हुई हैं। स्पेशली लेट्स से अगर मैं किंगडम एनिमेलिया की एग्जांपल लेता हूँ, वो चैप्टर जो है वो AQ टेस्ट के अंदर भी है, वो चैप्टर हमारे पास MDCAT सिलेबस के अंदर भी है। लेकिन उसमें कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस ये है कि इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, किंगडम एनिमेलिया के अंदर सिर्फ कोर्डेटा की जो क्लासिफिकेशन है, आई थिंक ओनली दैट इज डिस्कस्ड। उससे पहले वाले जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं दैट आर नॉट डिस्कस्ड इन द MDCAT सिलेबस। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन आई थिंक इसकी कुछ इस तरह के चैप्टर के डिफरेंसेस होते हैं कि कोई भी चैप्टर आपने MDCAT का लिया और AQ का लिया, AQ के अंदर जो भी चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट FSC का चैप्टर है, उसमें हर चीज़ ऐड की हुई है। अगर आप कोई भी बुक उठाएं, आपने PTP यूज़ की, तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चैप्टर लिया, उस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेना PTP की बुक से, तो आपने AQ के सिलेबस के अकॉर्डिंगली उस पूरे चैप्टर को आपने कवर कर लिया। तो आई वुड से कि doing only the MCAT syllabus is not sufficient. You need to follow the AQ syllabus to be able to be confident for the test. ठीक है? तो सेट मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन्हें अपने ए लेवल्स के अंदर या FSC के अंदर आई थिंक मैथ होती है, आई कैन नॉट रिकॉल, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जिन्हें ए लेवल्स, क्योंकि मैंने ए लेवल्स किया था, तो ए लेवल्स में जिन्हें मैथ ली होती है उनके लिए तो बहुत ईजी होता है AQ टेस्ट के अंदर जो मैथ है उसको पास करना। लेकिन अगर आपने मैथ नहीं ली तो फिर लाइक इट इज़ नॉट रियली अ प्रॉब्लम। मैंने भी मैथ नहीं ली थी, तो उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि आपकी जो बेसिक मैथ की रीजनिंग की जो स्किल्स हैं, आपकी बेसिक मैथ की सॉल्विंग की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ टॉपिक्स की बात करूँ ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड जो मुझे अभी याद आ रही हैं, तो आपके जो बेसिक नंबर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स आर देयर, वो आपको पता होनी चाहिए। आपको इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और आपको रेट, रेशियो, प्रोपोर्शंस वगैरह ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रैक्शंस आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। फ्रैक्शंस शुड बी फ्लॉलेस। फ्रैक्शंस आपकी जो है फिजिक्स के अंदर भी टेस्ट होती हैं फ्रैक्शंस, AQ टेस्ट के अंदर भी, मतलब डायरेक्टली टेस्ट नहीं होती कि आपके फ्रैक्शन आपने इस तरह सॉल्व करनी है, लेकिन उसको इस तरह से क्वेश्चंस के अंदर इंटीग्रेट किया होता है कि आपके मल्टीपल मैथ के कॉन्सेप्ट जो हैं एक साथ टेस्ट हो रहे होते हैं। इसके अलावा आपके जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें ये जो है सेट मैथ 1 आई बिलीव उसके सिलेबस के अंदर कवर हो रही होती है। सो इफ़ यू डू आई थिंक बैलेंस सेट 1 की बुक अवेलेबल है ऑनलाइन, तो उसको आप यूज़ करें, या फिर कॉलेज पांडा सेट मैथ की जो बुक है उसका भी जो भी सिलेबस का कंटेंट है दैट वेरी क्लोजली रिजेंबल्स दैट ऑफ द AQ टेस्ट। मतलब अब मैं ये नहीं कह रहा इट इज द सेम AQ टेस्ट के अंदर भी बाहर की चीज़ें हैं सेट मैथ कि बाहर की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो लाइक नॉट कम आफ्टर मी अगर मैं ये कहूँ कि आपने सिर्फ सेट की मैथ करनी है, टू डू एज मच एज पॉसिबल आप डिफरेंट सोर्सेज से करें, तो इससे आपकी सिर्फ जो प्रैक्टिस है और प्रिपरेशन है दैट इज ओनली गोइंग टू गेट बेटर। आपने एक्स्ट्रा करने से कभी आपको नुकसान नहीं हो।
होगा। तो सेट मैथ आप करें। इसके अलावा अनदर इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू शुड कवर इज के इफ यू हैव टाइम, मतलब अभी तो टाइम थोड़ा सा कम है लेकिन आप कोशिश करें और टेक आउट सम टाइम। और IKMC इज नॉट डायरेक्टली टेस्टेड इन द टेस्ट, और बहुत सारे लोग, मतलब मैं उनको रिकमेंड करता हूँ और पूछते भी हैं कि IKMC हम क्यों करें, उससे सवाल जो है डायरेक्टली क्यों में टेस्ट नहीं होते। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि IKMC के क्वेश्चन जो हैं दैट आर सो डिफिकल्ट that they are going to improve your overall reasoning skills for the math portion of the AQ test. मतलब there are, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, और उससे आपकी जो ओवरऑल जनरल जो रीजनिंग की कॉन्सेप्ट्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो इम्प्रूव होती हैं। और उससे डायरेक्टली उसमें मैथ के क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन इफ़ यू लाइक फाइंड आउट सम टाइम अदर देन योर मैथ प्रैक्टिस, तो आप उसके भी क्वेश्चंस करें। और इसके अलावा इफ़ वी टॉक अबाउट सम फ्री रिसोर्सेज, तो खान एकेडमी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फ्री रिसोर्स अगर आपने वहाँ से प्रिपेयर करना है। उसके अंदर पूरा जो भी कॉलेज अलजेब्रा है वो आप कर लें। हाई स्कूल मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स हैं दोज यू कैन डू। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी रिसोर्सेज हैं मैथ को करने के लिए। आई थिंक जैन मैटिक्स इज़ वन ऑफ द गुड चैप्टर्स, गुड चैनल्स फॉर ओ लेवल मैथमेटिक्स। और ओ लेवल की मैथमेटिक्स और मैट्रिक की मैथमेटिक्स अगर आपकी वो अच्छी है तो फिर आपको मसला नहीं होगा। दोज आर द मोस्ट, मतलब उस डिफिकल्टी की मैथमेटिक्स आपकी टेस्ट होती है, उससे ज़्यादा आपकी ए लेवल्स वगैरह की मैथ उसके अंदर नहीं आती। फॉर एग्जांपल ए लेवल्स के अंदर आई थिंक इंटीग्रेशन वगैरह है, वो आपकी टेस्ट नहीं होगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अगर आपकी ओ लेवल्स की अच्छी है तो आप उसी को रिवाइज कर लें, तो वो बात फ़ायदेमंद होगी। और जैन मैट्रिक्स के अलावा आई थिंक अ वेरी गुड चैनल दैट आई रियली एंजॉयड वाज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्यूटर। उसके बहुत अच्छे लेक्चर्स होते हैं मैथ के अंदर, सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपके इम्पोर्टेंट हैं वो सेट उसके पूरे उनका जो चैनल है उसके अंदर पूरे सेट का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से थर्डली कवर्ड है। इसके अलावा आई थिंक कोग्निटो वाज वन ऑफ द अदर चैप्टर्स। आई थिंक वी आर गोइंग टू शेयर द लिस्ट ऑफ द रिसोर्सेज लेटर ऑन आल्सो, ताकि यू कैन गो बाद में आप इनको रिविजिट कर सकें। आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Ariba, can you move on? Okay. सही। सो रिसोर्सेज की मैं दोबारा जो बात है प्रीवियसली में कंटिन्यू करूंगा। तो लेट्स गो थ्रू रिसोर्सेज वन बाय वन कि आपने हर पोर्शन के हर सब्जेक्ट को कवर करना है तो आपने कैसे करना है। इफ यू टॉक अबाउट द साइंसेस पोर्शन, तो उसके अंदर आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं। यू हैव बायो, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो बायो को कवर करने के लिए आई थिंक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड, अगर आप ए लेवल्स के हैं, आपने एफएससी जिस भी बोर्ड से की है, आप उस बोर्ड को आपने अच्छे से कवर किया हुआ हो, दैट इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल थिंग कि आपने उसको अच्छे से किया है। लेकिन इसके अलावा आई थिंक यू शुड टेक आउट द टाइम बिकॉज इट इज़ वेरी वर्थ इट। आप पीटीबी से गो थ्रू करें, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, आप उसको रेफर करें। और यू शुड एटलीस्ट गो थ्रू द बायो चैप्टर्स वंस। उसके अंदर जितने भी बायो के जो चैप्टर्स हैं, जो बायो का पीटीपी के अंदर कंटेंट है, दैट इज that very closely resembles to what is tested in the AQ test. तो आपने अपने बोर्ड से किया, आपने उसके नोट्स वगैरह आपने बनाए हुए होंगे, तो आपने बायो की टेक्स्ट बुक उठाई पंजाब की, और उसके अंदर फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग द चैप्टर ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तो आपने वो चैप्टर लिया और यू गो थ्रू द पीटीबी बुक, द पीटीबी चैप्टर उसकी बुक में से, और यू फाइंड आउट ऑल ऑफ द एक्स्ट्रा थिंग्स और कॉन्सेप्ट्स और नेम्स या कोई भी टर्म्स वगैरह जो आपने इस चैप्टर के अंदर सीखी हैं, एंड यू ऐड दोस इन योर नोट्स। और फिर आपने उनको उस नोट को स्टडी करना है। आपको अलग से शुरू से कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेस्टफुल अगर आप बिल्कुल स्क्रैच शुरू करें इस टाइम पे। लाइक इफ यू आर अ गैप ईयर स्टूडेंट, तो फिर लाइक इट मेक सेंस कि आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, यू कैन गो ओवर एवरीथिंग वंस अगेन। लेकिन अगर आप जो हैं, लाइक इफ यू आर मोस्ट ऑफ यू आर एफएससी स्टूडेंट्स और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपने अभी रिसेंटली अपने एग्जाम्स दिए हैं, तो उसके लिए यू शुड नॉट लाइक डू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। आपके जो नोट्स हैं, आपके जो ऑलरेडी सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का जो मटेरियल है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। उसी के अंदर आप अपनी एडिशंस करें पीटीबी की बुक के अंदर। यू गो थ्रू ऑल ऑफ द चैप्टर्स फ्रॉम द पीटीबी बुक्स फ्रॉम ऑल ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। सही है।
और बायो के लिए तो बेसिक आइडिया ये है कि आपने जो इससे चैप्टर्स हैं बायो की बुक से आपने कवर कर रहे हैं और ऐड द न्यू लर्न पॉइंट्स फ्रॉम दोज बुक्स थ्रू योर नोट्स, और फिर आपने उसको अपने जो एमसीक्यूज हैं और इसमें आपने अप्लाई करना है आपने जो कोई भी कॉन्सेप्ट्स लर्न है, और एमसीक्यूज में से भी आप जो चीज़ सीखें आप नोट्स में ऐड कर लें, ताकि आपकी जो आपके नोट्स हैं, जो आप इस टाइम पे अपने नोट्स बनाएंगे, दैट आर गोइंग टू बी द बेस्ट रिसोर्स फॉर योर ओन प्रिपरेशन। आपको किसी और नोट्स की जरूरत नहीं है, आपको किसी और एडिशनल लेक्चर्स की बहुत ज़्यादा अगर आपको हेल्प नहीं चाहिए तो आपकी उनकी ज़रूरत नहीं है। योर नोट्स अगर आप इफ़ दे आर वेल मेड और इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि आप उनको बनाएं, तो दोज आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो आपने जितने भी एमसीक्यूज किए आपने उससे रिसोर्सेज जो अपने उससे जो द थिंग्स दैट यू हैव लर्नड टू ऐड दोज टू योर नोट्स, दोज आर गोइंग टू बी वेरी गुड। सही है। तो इसमें किंगडम के जो चैप्टर्स हैं, किंगडम एनिमेलिया और प्लांटे यू शुड ट्राई, और किंगडम एनिमेलिया तो आपने लाजमी करना है, किंगडम प्लांटे भी यू शुड ट्राई और आपको काफ़ी कर लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैं टेस्ट दिया था उसके अंदर किंगडम प्लांटे की कुछ सवाल थे और लाइक कॉट मी ऑफ गार्ड और मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या करना है, सो आई स्किप दोस क्वेश्चंस। लेकिन एनिमेलिया के क्वेश्चंस आए थे, तो किंगडम्स को आपने लाइटली नहीं लेना प्लीज, किंगडम्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। और जो भी हाई यील्ड चैप्टर्स हैं अब्दुल रहमान उनकी आगे बात करेगा, सो मेक अ नोट ऑफ दोज। जो हाई यील्ड चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए और उनकी आपकी प्रैक्टिस भी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। सही है। इसके अलावा फिजिक्स के लिए भी जो अच्छी प्रिपरेशन है वो इसी तरह से होगी कि आपने अपना पीटीबी की बुक लिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बोर्ड। आई डू रिकमेंड यू गो थ्रू द पीटीबी बुक, और उसके अंदर जो भी आपने नया कॉन्सेप्ट सीखा है, यू जस्ट गो थ्रू द चैप्टर। कोई भी नया कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और एप्लीकेशन आपने उसमें से लर्न की और यू ऐड दोज टू योर नोट्स, तो योर नोट्स आर गोइंग टू बी गेट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। और कोई भी चीज़ आप एक्यू टेस्ट के लाइक उसके रिलेशन में आप कुछ मिस नहीं कर रहे होंगे। इफ़ यू आर कवरिंग पीटीबी प्रॉपरली, तो आपका AQ का सिलेबस है वो भी कवर हो रहा होगा। यू कैन स्टिल लाइक ओपन द AQ सिलेबस और आप उसके साथ ओपन कर सकते हैं, एंड यू कैन टेली थिंग्स साइड बाय साइड कि आपने कुछ मिस तो नहीं किया। लेकिन आई वुड से कि इफ़ यू डू पीटीबी कॉम्प्रिहेंसिवली तो फिर आपकी AQ टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी। और केमिस्ट्री का भी यही सीन है, केमिस्ट्री के अंदर भी हाई चैप्टर्स की अब्दुल रहमान बात करेगा। उसके अंदर भी तरीका ये है कि आपने पीटीबी की बुक ली और उसके अंदर जो है अच्छे से जो नई चीज़ें हैं वो आपने सीखी और अपने नोट्स में ऐड की। स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पीटीबी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं, और उसमें से आप पढ़ें और कोई भी जो नई चीज़ है वो अपने नोट्स में ऐड करें। आई थिंक द ए लेवल स्टूडेंट्स वो ज़्यादा ये चीज़ नोटिस करेंगे कि पीटीबी के अंदर बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है जो नहीं सीखा, तो इस लाइक इन दिस केस उनको थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी है और देखना है कि उनको ज़्यादा टाइम इस चीज़ में देना है। तो आई डू रिकमेंड कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है पीटीबी से अच्छे से कर लें। तो ये हमारे पास पीटीबी इज गोइंग टू बी द वेरी द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स दैट यू डू हैव। इसके अलावा गुड रिसोर्सेज आपके पास जितनी भी सेट की बुक्स हैं, सेट और इंटरनेशनल कैट की बुक्स आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। दोज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। दोज आर समथिंग दैट आई हाईली रिकमेंड। वो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की थी, दैट दोज वर रियली बेनिफिशियल फॉर मी टू। और उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके जो एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस होते हैं, even though they're not a lot, I think there are only around 15 to 20 questions per chapter, जो एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस होते हैं सेट, बैलेंस सेट और कैप्टन MCAT के अंदर। लेकिन दोज आर वेरी बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और आई डू रिकमेंड कि यू प्रैक्टिस दोज। और जितनी भी सेट की बुक्स हैं, इवन तो मतलब मैं ग्रुप्स देख रहा होता हूँ और इसके अंदर लोगों के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि हम कौन सी सेट की बुक्स यूज़ करें, पेरेंट्स यूज़ करें या प्रिंसटन यूज़ करें। यू नो एट दिस पॉइंट इट डजंट रियली मैटर। अगर आपने सेट करना है तो आपकी जो बेसिक प्रायोरिटी इस टाइम पे होनी चाहिए, दैट इज कि आप ना मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। ठीक है। तो सेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको खान अकेडमी में मिलते हैं, आपको बैलेंस की बुक में मिलते हैं, आपको प्रिंसटन की बुक में मिलते हैं। जितने भी सेट के क्वेश्चंस हैं एंड ऑफ चैप्टर, आई वुड से दैट यू अटेम्प्ट ऑल दोज। उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने वाला हो उस पर्टिकुलर चैप्टर के रिलेशन में, तो यू कैन गो थ्रू द कंटेंट ऑफ द चैप्टर फ्रॉम द सेट बुक इफ यू वांट टू। मतलब उससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। तो इफ यू हैव टाइम आई डू रिकमेंड दैट।
और these PTV और SAT और MCAT, these are the most high yield resources that you can have. इसके अलावा I think reasoning portion. Abdullah, can we move on to the next sections as well, please? हाँ, I think the resources वाली बात I felt like कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, तो Obviously, I understand that as well. If there's any very high yield resource that you would suggest, तो वो आप बता दो. And बाकी then we will also make sure that everyone joins our AQ guidance group. तो वहाँ भी हम लोग वो भी शेयर कर देंगे, ठीक हाँ, है? वहाँ हम सारे रिसोर्सेज जो हैं ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली बता सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि आपको मतलब द जिस्ट ऑफ द थिंग दैट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज कि आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के बीच में भागने की जरूरत नहीं है. अगर आप कुछ रिसोर्सेज अपनी पीटीबी और अपने एमसीक्यू बहुत अच्छे से कर लें तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, और आपको इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने वो इस रिसोर्स से नहीं किया या इस रिसोर्स से नहीं किया, तो मतलब you don't have to like be nervous about it. और जो आपके पास कुछ the few resources that you have, you do those very well, तो आपकी preparation जो है वो अच्छी होगी. और बाकी जितने भी list of resources जो that I talked about वो आपके साथ guidance group के अंदर share हो जाएंगी. तो let's quickly go over the rest of the slides. अच्छा, can you just give me 1 minute? My throat is parched. मैं एक दफा पानी पी के आ लूँ. Yeah, sure, I understand. So guys, just to reconfirm, so we have the comment section open. So if you have any questions, please do feel free to add all of them over there. I am personally answering all those questions over there. इसके अलावा we have a couple of AQ guidance groups as well. So I hope all of you have joined those. अगर नहीं join किया हुआ, so we'll send the link in the comment box only. So just make sure to join that. जो अब्दुल्ला ने सारी books बताई हैं as far as all the SAT 2 books are concerned, the SAT 1 papers are concerned, they're all available on a drive made by Premed, absolutely free. So go check those out. A lot of people in the comment box are asking about questions. कहाँ से करने? So we have 8 free, absolutely free. आपको बस sign up करना है, कोई credit card कुछ और नहीं देने की जरूरत. They're completely free AQ past papers. They're not past papers actually, they're mock papers. सही है? So हमने कोशिश की है कि जितने हम लोग जितना करीब आ सके AQ exam से in terms of similarity, किस तरह का timing होती है and all. So we made like 8 papers. They're mock papers made by us, so just go and attempt those ताकि थोड़ा अच्छा आइडिया आए कि किस तरह AQ का एग्जाम होता है, क्या स्ट्रेस होता है टाइमिंग का, because we've also built in the timer system, number 1, and also the negative marking system. So now the questions actually have negative marking. तो इस तरह you can basically practice yourself in the best possible way. जब तक अब्दुल्ला वापस आता है. Let me just also check through the comment box. अगर अभी कोई चीज हम लोगों ने देखी हो मैं उसको भी एड्रेस कर दूं. चलो, अब्दुल्ला is back. Over to you, अब्दुल्ला. ओके, सो स्टडी टेक्निक्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली पहले भी टच अपॉन किया था कि आपने किस तरह से हर सब्जेक्ट को लेकर चलना है, और उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने पहले बताई थी कि आपने बायो किस तरह से स्टडी करनी है. तो लेकिन अ फ्यू अदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इन लाइक किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है. तो मी पर्सनली आई एम अ गैप ईयर स्टूडेंट, और मैंने जिस तरह से प्रिपेयर किया था दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी एप्लीकेबल टू यू, लेकिन जो मेरे दोस्तों ने किया था उनका मैं बता सकता हूँ, और मतलब दे हैव बीन सक्सेसफुल, वो मेरे बैचमेट्स भी हैं. तो व्हाट दे बेसिकली डिड वाज कि उन्होंने अपने जो भी उनका एफएससी कंटेंट था वो उन्होंने स्ट्रांग रखा, ठीक है, और देन दे क्विकली लाइक जिस तरह से मैंने बताया दे स्टडीड पीटीपी, मतलब पीटीपी सारे हमारे सीनियर्स भी रिकमेंड करते हैं, सो दे स्टडीड फ्रॉम दैट, और उन्होंने फिर सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस की है, ठीक है. आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा जरूरी है. द मोर एमसीक्यूज यू प्रैक्टिस द स्ट्रॉन्गर योर ओवरऑल प्रिपरेशन इज गोइंग टू गेट, ठीक है. इसके अलावा आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कीपिंग योरसेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि आई नो AQ टेस्ट की जो प्रिपरेशन होती है इट इज़ वेरी डॉन्टिंग, बहुत ज़्यादा नेट ब्रेकिंग प्रोसेस होता है, और आप इतने सारे स्टूडेंट्स से कंप्लीट कर रहे होते हैं और आपके जहन में ये होता है कि यार मतलब मेरा होगा ही नहीं होगा. लेकिन यू नो द इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, यू शुड नॉट लाइक फोकस ऑन द आउटकम राइट नाउ. जो भी होता है मतलब वो सिर्फ अल्लाह से की मर्जी से होना है. लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपके जाने के लिए वो ये कि यू हैव टू स्टडी फॉर लाइक योर ओन प्रिपरेशन. आपने किसी और से कंपेयर नहीं करना है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा. आपने ये देखना है कि आपने क्या करना है और आपने वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपने अचीव कर लिए कि नहीं, ठीक है. तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है कि अपने लिए एक शेड्यूल बनाना
और आई थिंक शेड्यूल जो है इट इज़ लाइक रेडी रिकमेंडेड, सबको बनाना चाहिए कि आपने इस टाइम तक इतना अपना कोर्स जो है मटेरियल कंपेयर करना है, आपने इस टाइम तक इतने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेनी है और आपके पास ये चीज़ें जो हैं वो कवर होनी चाहिए। और इसके अलावा यू नो ड्यूरिंग अच्छा लेट्स से थोड़ा सा टाइमलाइन की बात करें हम यहाँ पे, ठीक है। अभी आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, आई थिंक इट इज़ द 4th of June, तो आपने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो 30th of June तक जून 30 ये होता है ना, हाँ, तो 30th of June तक आपने अपनी जितनी भी सिलेबस कवरिंग वाला पार्ट है ना, मतलब एक्चुअल लर्निंग वाला पार्ट, आपने 30th of June तक वो कंप्लीट कर लेना है। और बियॉन्ड 30 जून आई डू नॉट रिकमेंड कि आप कोई भी नई चीज़ स्टडी करें। और अब आफ्टर 30 जून यू ओनली हैव टू लाइक अटेम्प्ट द एमसीक्यूज और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी सिर्फ रिवीजन एक तरह से हो रही हो। और अगर आपको कोई भी दोबारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपने दोबारा सीखना है, यू हैव टू लाइक यू फील द नीड टू गो बैक ऑन इट और वो चीज़ इम्प्रूव करनी है, सो यू कैन डू दैट इन द रेस्ट ऑफ द 20 days दैट यू आर लेफ्ट विद। लेकिन आफ्टर 20 आई डू रिकमेंड कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करें और आप अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनको कवर करें, और यू शुड नॉट बी लर्निंग एनीथिंग न्यू। इसके अलावा ऑल्सो ड्यूरिंग द लास्ट 20 days इवन दो यू कैन स्टार्ट नाउ, लेकिन अभी आप अपनी जो एक्चुअल प्रिपरेशन है, एक्चुअल लर्निंग है, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। आफ्टर 30 जून व्हेन यू स्टार्ट लाइक प्रैक्टिसिंग द एक्चुअल एग्जाम पेपर्स, मतलब जो AQ टेस्ट के जो स्टाइल के पेपर्स होते हैं, जो मॉक पेपर्स जो आपने करना है, उसमें फिर आपने जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये नेगेटिव मार्किंग वाले कॉन्सेप्ट, अपने टाइमिंग वाले कॉन्सेप्ट, कि आपने सबने वहाँ पे अप्लाई करना है, और आपने ये देखना है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से जा रही है। आपके थ्रेशोल्ड 70% थ्रेशोल्ड अभी आपने अपने लिए सेट करना है, और आपने देखना है कि आपने थ्रेशोल्ड के से कितने, आपके थ्रेशोल्ड से कितने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और इवन दो मतलब स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आपके 70% से कम मार्क्स आए हैं, या इतने टाइम लाइक इवन दो 2 hours साउंड्स लाइक इट आउट, और सिर्फ 100 MCQs हैं, लेकिन द टाइम इज़ वेरी लेस, मतलब बहुत टेस्ट के दौरान में बहुत कम टाइम, बहुत ज़्यादा कम टाइम फील होता है। टेस्ट के अंदर टाइम बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है जो आपको फेस करना पड़ेगा। अगर मैं अपना ज़रा एक्सपीरियंस बताता हूँ। आई वॉज डूइंग द रीजनिंग पोर्शन, उसके अंदर एक आई स्टिल रिमेंबर, उसके अंदर एक लास्ट क्वेश्चन था, और लुकिंग बैक ऑन इट द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, इट वाज वेरी मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन क्योंकि आई मिसरेड वन पर्टिकुलर नंबर, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू मैंने मिसरेड कर ली थी, उसकी वजह से मुझे वो क्वेश्चन पूरा दोबारा करना पड़ा, और इट कॉस्ट मी अ लॉट ऑफ टाइम। तो इस तरह की गलतियां जो हैं वो आपने इस तरह की गलतियां आपने प्रिवेंट करनी है, और ये गलतियां आपकी प्रिवेंट होंगी अच्छी प्रैक्टिस से, और बार बार उन मॉक पेपर की क्वेश्चन करने से, और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करने से, ताकि आपके जो MCQ को करने का जो अप्रोच है वो इम्प्रूव हो। आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, MD-CAT versus AQ. I think we're still left with a couple of slides. में बहुत सारा Abdullah, time can I नहीं take over the slide if it's okay? Because I think it's very important. मैंने पहले हाँ, discuss sure, किया था. ठीक है, go Yeah. ahead. So, a lot of people message me कि sir दो सवाल होते हैं. एक तो ये बताएं कि what is the difference between the AQ test and the MD-CAT. एक ये सवाल होता है. And दूसरा ये होता है कि सर मुझे बताएं कि AQ versus other medical schools of Pakistan. So I'll just take a couple of minutes and address both these things. एक तो ये है कि नंबर वन फर्स्टली जो AQ वर्सेस अदर मेडिकल स्कूल, सो मैं ये बोलूंगा बात कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देखिए AQ नो डाउट इज वेरी एक्सपेंसिव, सही है ना, इट्स मोर देन जब तक आप लोग आएंगे तकरीबन 30 लाख से ऊपर ही चली गई होगी फीस आराम से, बट AQ इज 100% वर्थ इट, सही है ना। द रीजन व्हाई कि मैं अभी 4th ईयर में हूँ, आई कैन टेल यू कि आई हैव माय एग्जाम्स, आई हैव माय रोटेशंस, आई एम करंटली इन ऑब्स एंड गायनी, एंड मैं अपने दोस्तों को पूछता हूँ जिस तरह जो डाउ में है या कीमू में है या फिर अल्लामा इकबाल में, एंड दे टेल मी कि यार इवन ऑब्स गायनी which is a very specific field जहाँ पे ज़्यादा मेल जो मेडिकल स्टूडेंट्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, बट फिर भी आर कंसल्टेंट्स फाइट फॉर अस, दे विल आस्क द पेशेंट एटलीस्ट कि क्या ये मुआयना कर सकता है, क्या ये फॉर एग्जांपल एग्जामिन कर सकता है। तो ये चीज़ रियली लेकिन डिफरेंशिएट करती है। जो हमारी ऑस्क्यू होती है जहाँ पे फॉर एग्जांपल वी हैव सिमुलेटेड पेशेंट्स, एसपीज होते हैं, एंड यू हैव टू गो एंड आस्क देम लाइक स्पेसिफिक क्वेश्चंस कि मेरा नाम हसनैन है, आज मैं आपके पेट का मुआयना करूंगा, आज मैं आपकी जॉन्डिस की हिस्ट्री लूंगा फॉर एग्जांपल। तो मैंने नोटिस किया है कि बाकी मेडिकल स्कूल्स में तो
ये बिल्कुल होता ही नहीं है। सो जो हमारी ट्रेनिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऐसी बेहतरीन हो जाती है कि बाय द टाइम वी ग्रेजुएट, आई आई यूज्ड टू थिंक, यू नो, अभी मैं कमेंट सेक्शन देखा था, किसी ने बोला था कि आप सब इंग्लिश में बात कर रहे हो। मैंने एक चीज रियलाइज की कि AQ में आके दे इन्फोर्स कि आपको उर्दू भी आनी चाहिए, ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स, जिस तरह स्प्लीन को उर्दू में क्या बोलना है, लिवर को उर्दू में क्या बोलना है, और लंग्स को उर्दू में क्या बोलना है, दे टीच यू दैट एज वेल, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि व्हाइल अ लॉट ऑफ किड्स प्रिपेयर फॉर द USMLE, US भी जाते हैं, बट एट द एंड आप पाकिस्तान सेटिंग में 5 साल के लिए काम कर रहे हो, मे बी इन फ्यूचर मे बी एज वेल, सो दे मेक श्योर कि आप दोनों कंट्रीज के लिए बिल्कुल 100% ट्रेंड होते हो। As far as like our graduates are concerned, they match into best places, जिस तरह के for example surgery है, internal medicine में भी they go to the best places in the US. अगर पाकिस्तान की बात करें तो we see our graduates go and open big hospitals. अभी डॉक्टर सुहेल है, he has opened a hospital in Quetta. एक डॉक्टर बशीर हनीफ है, he is running a very famous very massive cardio center in Karachi. तो इस तरह के हमारे जो graduates हैं, they're spread all across and they are actively working in helping the Pakistani population and also the academic research. तो as far as मैं ये बोलूँगा सबको कि देखिए, अगर AQ का टेस्ट के पैसे दे दिए, you have to just go in with this tunnel vision कि मेरा अब AQ में हो जाएगा अगर मैंने बस टेस्ट क्लियर कर दिया। सही है ना, forget the interview, forget if you can afford it or not. They actually give very massive, enormous scholarships, aids, grants. तो आपको उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर यू डिजर्व इट तो आपको इंशाल्लाह वो मिल जाएगी। अभी रियल जो गोल है वो क्रैक करना है AQ का एग्जाम। एक तो ये, अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि भाई MD कैट वर्सेस AQ तुम बता दो, जिस तरह अब्दुल्ला ने बड़ा डिटेल में कवर किया। 2-3 चीजें, एक तो ये है कि भाई MD कैट में ना कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है, इट्स ओनली AQ दैट्स द एग्जाम दैट हैज नेगेटिव मार्किंग। इसके अलावा SAT-2 एक जमाने में होता था, अब तो SAT-2 बिल्कुल अबैंडन हो गया है, बट SAT-2 में नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी। तो एक तो ये बात है। सो जो हमारे बच्चे होते हैं जिनने फॉर एग्जांपल A लेवल किया होता है या इंटर किया होता है, उनने कभी नेगेटिव मार्किंग को रियली प्रोसेस नहीं किया होता है, बिकॉज उसको अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस को एक बहुत तरीके से आपको करना होता है। यू कैन नॉट अटेम्प्ट टू मनी क्वेश्चंस वरना आप वहां पे एक चांस रखते हो कि आपकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप नीचे आ जाओ, और ऐसा भी ना हो कि नेगेटिव मार्किंग के डर की वजह से आप क्वेश्चंस करो ही ना, बिकॉज फिर क्या होता है, फिर आपके मार्क्स इतने बनते ही नहीं कि यू कैन रीच द एक्चुअल थ्रेशोल्ड। एक तो ये है। दूसरा क्या है, मैथ्स एंड साइंस रीजनिंग। इसमें तो लेकिन लोगों को सुन के ना टांगे कांप जाती है कि भाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो भाई अब करना ये है कि एट द एंड आपको ये समझना है कि यार अगर आपने A लेवल मैथ्स लिया था या फिर आपने O लेवल में मैथ्स किया, यू सॉर्ट ऑफ सेट। एक तो ये बात, अगर नहीं किया तो भी कोई मसले की बात नहीं है, यू हैव टू जस्ट शार्पन योर ब्रेन। करना क्या है भाई, SAT-1 के जो प्रैक्टिस टेस्ट है, मैंने बताया कहाँ पे, गूगल ड्राइव पे डले हुए, आप जाओगे, आप जाके बस प्रैक्टिस करोगे। एंड ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला उठाना पड़ रहा है जो आप बोलो यार मुझे ये फॉर्मूला नहीं आता, देन आई विल स्ट्रगल। इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन। मेरे जो एग्जाम है ना, मैंने 2 दफा एग्जाम दिया है, लिटरली एग्जाम में पता क्या है, एग्जाम में आई थी सवाल जो मेरे व्हाट्सएप पे रिडल आते हैं ना, कि यार देयर इज अ कैट, देयर इज अ टेबल, देयर इज अ बॉल, नाउ टेल मी व्हाट्स द हाइट ऑफ द कैट। देयर जस्ट कि आपको वहां बैठ के ना विद इन 1 मिनट ठीक सोचना पड़ता है। या फिर वो रिडल होती है ना कि मतलब देयर आर लाइक 5 cats and 6 dogs and this and that in a desert and 10 humans, तो मुझे बताओ कि हाउ मेनी आर पीपल हु आर 2-legged। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको बैठ के कोई बहुत ज्यादा मैथ्स के फॉर्मूले लगाने पड़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगानी पड़ी, इस तरह कुछ भी नहीं है। बस आपको उस वक्त बैठ के अगर दिमाग शार्प होगा, फ्रेश होगा, टाइमिंग की इशू नहीं होगी, आप सेट हो गए। एंड टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो MD कैट है, दिस इज द थर्ड एस्पेक्ट। So MD CAT will basically have questions that are just like one-liners. They will have questions जो बिल्कुल verbatim बुक से उठाए हुए होंगे। आपने अगर बुक पढ़ी, आपको उसका आंसर पता है या नहीं पता है। बट जो AQ वाला एग्जाम है उसमें आपको बैठ के प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाना पड़ता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि क्या है भाई, एक सवाल आया, मुझे उसकी ABC भी नहीं पता, सही ना, आई हैव नो आइडिया, एंड दिस हैपेंस इन एवरी एग्जाम। क्या करना होता है, आपको बैठ के ऑप्शंस देखने पड़ते हैं एंड आहिस्ता आहिस्ता आप एलिमिनेट करते हो कि ये ऑप्शन है, या तो ये ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन के लिए मैच नहीं कर रहा, या ये ऑप्शन कोई और चीज के लिए लिखना आपको रेफर कर रहा है, तो आप वो हटा दोगे, वो हटा दोगे, वो हटा दोगे, एंड में जाके एक ऑप्शन बचेगा जो सही होगा। So this is how you compare MD CAT versus AQ. Next slide, please, Ariba. I think that covers the YouTube resources, if I'm not wrong. Yes. So Abdullah ne bari detail में cover किया था all the YouTube resources. He mentioned Zenematics, for example, for physics.
मैं ये बताऊंगा कि देखें, अब्दुल्ला ने बिल्कुल एंड में जाके एक बेहतरीन ये बात की कि जिस ये है कि यार रिसोर्सेज के पीछे भागना नहीं है कि आज ये रिसोर्स कल वो रिसोर्स। जो स्टार्ट किया है हम आपको बता रहे हैं अभी, जस्ट स्टिक विद दोस्त। सो यानी ऐसा ना हो कि आप बोलो कि यार आज मैं ये रिसोर्स कर रहा हूँ एंड देन कल फॉर एग्जाम्पल मुझे लाइक अब किसी और ने कुछ बताई बात तो मैं वो कर लूँ। The reason why this entire panel is here is because we're trying to give you the best possible resources। आज 1 घंटा लगा के सब कुछ देख लो, सिनेमैटिक्स की वीडियो देख लो, कुछ लोग को अच्छी लगेगी, कुछ लोग को अच्छी नहीं लगेगी। जाके फॉर एग्जांपल मैथ्स और साइंस रीजनिंग के लिए जो हमारा ए लेवल का क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का पेपर होता है वो खोल के देख लो, समझ आएगा, समझ आएगा, नहीं आए कोई बात नहीं। बट आज बस डिसाइड कर लो कि यार ये रिसोर्स है एंड आई एम गोना स्टिक विद देम टिल द एंड। ये जो होता है ना कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस की यार आप आज यहाँ के कल वहां के, उसमें मजा नहीं आता, उसमें जनरली फिर पढ़ाई इफेक्ट होती है। मैं एक बात सजेस्ट ही करूंगा बिफोर अब्दुल रहमान कम्स ऑन कि ये चीज बहुत जरूरी याद रखनी है कि यार ऑफन बच्चे जो करते हैं ना, मैं भी ये इसका एक खुद इसमें शामिल हूँ कि यार मैं ना जो मुझे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जो चैप्टर्स आते हैं, मैं वही कर रहा होता हूँ, ये प्रैक्टिस कर लो। भाई जो नहीं आते वो पहले कर लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी थोड़ा सा टाइम है, पहले वो कर लो, एंड में 10 दिन में जाके ना आप वो जो आपको आते हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हो, उनके लिए टेस्ट क्वेश्चन कर लो। बट जो नहीं आते उनके कॉन्सेप्ट बनाओ, बिकॉज एग्जाम में ना अगर वो कॉन्सेप्ट आ गया और वो 2-3 दफा भी आ सकता है, तो या तो हिट है या मिस है। यू आइदर गेट दोस 3 क्वेश्चंस करेक्ट या 3 सवाल गलत होते हैं, और ये हमेशा होता है बच्चों का। तो ये जरूर आपको मद्देनजर में रखना है। चले ओवर टू अब्दुल रहमान, ही विल कवर द स्पेसिफिक हाई यील्ड चैप्टर्स फॉर द AQ एग्जाम एंड अदर थिंग्स एज वेल। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने बता दिया कि चल अब्दुल्ला यू कैन जस्ट टेक ओवर फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड, एंड अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कवर किया तो मैं समझा दूंगा बाद में। Okay. So, Assalamu alaikum. I'm Abdul Rahman. So, with regards to time management, I think everybody gave some input regarding this. कि you have to manage your time. Time बहुत कम होता है paper के अंदर. I think time management has 2 different elements attached to it, 2 different aspects that you can look it through. So one would be the paper aspect, one would be the preparation aspect. So I'll elaborate a little bit on the preparation aspect. You do not have a lot of time. आपका paper 21st July को है, and believe me, that is not a lot of time. You need to strategize your schedule. You need to strategize your path in such a way that कि आप जो है आपका schedule इस तरह से होना चाहिए that it proves to be the most effective. ठीक है, तो अगर आप इफेक्टिवली स्टडी नहीं कर रहे होंगे, अगर आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होंगे, तो यूर इट्स वेरी लेस लाइकली कि आप कहीं आपका स्कोर ज्यादा अच्छा आ सके. So this is how I think I'll further elaborate on this along with the other slides. Ariba, can we please move on? Okay, so this is a very important slide, personalizing your own schedule. तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने स्केड्यूल को, आप अपने टाइम को इफेक्टिवली इस तरह से डिवाइड करें कि जो है आपका कि आपका एक ऐसा स्केड्यूल बन जाए कि बिफोर द टेस्ट आपकी सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, एंड इफ नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द हाई यील्ड स्पेशली, एंड मोस्ट ऑफ द topics are covered, as well as your preparation is up to the mark. ठीक है, your preparation is as such कि आपका AQ test बहुत अच्छा हो सके, और you're confident that your preparation is really well. So what I'd suggest is, what I personally did was take a day off, ठीक है, from actual studying, ठीक है, and figure out and go through every single resource. Every single resource would include कि आप अपने PTB को देखें, FTB को देखें, आप SAT-2 की बुक्स देखें, जो भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हुई हैं और जो भी चीज़ें आपको सजेस्ट की हुई हैं, और हसनैन भाई ने एक ड्राइव मेंशन की थी, उस ड्राइव पे जो कुछ एक एक चीज़ जो है वो खोल के देखें, और उसके बाद यू गो थ्रू देम. आई एम नॉट सेइंग रीड द एंटायर थिंग, जस्ट गो थ्रू द 1 or 2 चैप्टर्स, या उसका सिर्फ अगर आप टेबल भी देख लें जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, तो इसमें ये होगा कि आप जो है यू विल गेट द आइडिया कि आपको क्या कवर करना है, और देन यू विल स्टार्ट प्रोसेसिंग योर ब्रेन कि आपने अच्छा ये पहले किया हुआ है, ये बाद में किया हुआ है. सो पर्सनलाइजिंग योर स्केड्यूल would basically apply here in the sense कि आप जो है उस सब को लेके एक पाथ जो है अपने क्लियर पाथ सेट कर लें, एंड देन यू जस्ट वॉक ऑन दैट पाथ एंड यू स्टडी अकॉर्डिंग टू दैट स्केड्यूल ओनली. ठीक है, एंड रिगार्डिंग दिस, one important takeaway point that I personally think is very important is to stay committed. If you are not committed, अगर आप जो है committed नहीं है अपने goals के साथ, तो it's going to get very difficult. At the last moment, cramming does not work. रट्टा नहीं चलता last moment पे. And
AQ test is not even about ratta mainly, it's about understanding, and you need time and you need a proper routine to understand your concepts. So this is very important. So today after this session, whenever you have time, go through every single resource and then try and figure out कि किस तरह से आपका schedule आपको लेके चलना है. इसी के साथ साथ I would suggest that you solve MCQs along with the chapters that you're doing, ताकि जो है just make your schedule in such a way कि इस तरह से चलता रहे साथ साथ, ताकि you keep on revising everything, and then keep a day for revision, ultimate revision. Make small key pointers, key takeaways from the MCQs that you are solving, और इसको लिख लो एक जगह पे, और इसके बाद फिर go over them at the end of the week, or just bi-weekly इस तरह से. So Ariba, we can move on. ओके सो एडवाइस टेक्स्ट बुक्स के ऊपर बहुत सारी जो है ऑलरेडी बात हो चुकी है. FTB, PTB, main resources, other resources would include SAT2, which I'd only suggest just go over once, not learn through it. You can use it to understand concepts. And textbooks के अलावा you can always use YouTube as your source of understanding or grasping the concepts. I'd say PTB or FTB से हटके, और या तो फिर if you're from the AQ educational board, उस syllabus से हटके you should not move towards the A level syllabus, because this is what a lot of people do कि अच्छा सही है, हम लोगों ने अपना जो है पेपर दिया हुआ है FSC का और हम A levels का करना शुरू कर देते हैं. This is not advised at all. आप जो है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं और आपको लगता है आपके कॉन्सेप्ट थोड़े वीक हैं, go over YouTube video, ask your seniors, ask your peers to help you out to grasp those concepts. Do not go for A level books. इसके अलावा I would also like to bring to light कि a lot of people do think कि मैथ रीजनिंग के लिए जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है उसके लिए O levels की किताबें खरीद के हमें पढ़ना चाहिए. That is not advised at all. ठीक है, I would advise against it. Yes, O level maths से आपके concepts build हो जाते हैं, but those books are really इतनी मोटी किताबें होती हैं and 4 किताबें होती हैं. So I don't think it's possible for you to finish your syllabus for O-level math. So that is the reason you should go over the SAT books and the other resources that had been previously mentioned. We can move along now. Okay, so specification of yield so basically I would like to emphasize a lot on this, because this is what actually can make or break your result. Okay? So yield is basically used to describe the frequency of how important or how repeated a concept or a topic is. Okay? So what you have to do here is pre-med and many other people, your seniors, or even the question while you're answering, while you're solving MCQs. So uske through, you understand or you get an idea. Pre-med provides you with the yield of topics as well, and they will be covered in the further slides. लेकिन वो आपको जो है एक idea आ जाता है कि ये chapter बहुत important है, इसके एक paper में 2-3 सवाल आए थे. ठीक है, this is what yield basically means, कि you identify or you understand कि अच्छा ये topic है जो बहुत ज्यादा आता है, बहुत repeated है, इसका concept मुश्किल है और वो ये ज्यादा पूछते हैं. So that is something you need to focus on. Now yields can be divided into three different divisions. So there is a high yield, there is a moderate yield, and there is a low yield, or there is a high yield and there is a normal yield or a low yield. So high yield topics are it's very imperative. It is so important कि आप जो है अपने high yield topics cover करें, क्योंकि जो है वो उनमें से कोई ना कोई सवाल हमेशा आता ही है. It is not like उसमें से नहीं आता, उसमें से हमेशा एक सवाल आता ही है. ठीक है, you need to cover your high yield topics. I think we can just move on, then I can explain साथ through the next slides. Next slide पे जा सकते हैं please. Can we please go to the next slide? Okay, so here's a chart of how the yields are divided. As you can see, एक more important है, एक less important की category है. So more important वाले जो chapters होते हैं आपके, they are very important. You need to have clear cut concepts on those chapters, of those chapters. And usually these chapters are what you've already either done in A levels या तो फिर FSC के अंदर. जैसे for example, I believe हर कोई जो यहाँ पर अभी बैठ के ये सेशन देख रहा है,
उसने स्टोइकियोमेट्री तो की हुई होगी और उसने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स किया हुआ होगा, उसके साथ साथ वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम भी किया हुआ होगा. So you have to, what you have to do is you have to remember I previously talked about how you can personalize your schedule. You need to personalize your schedule जिसके अंदर you pay a lot of attention to these topics compared to the others. I'm not saying don't pay attention to the others, but these are very important topics that you need to go over. And इसके I would personally advise कि आप इसके every single MCQ जो आपको प्रीमेड का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उसको आप गो ओवर करें बिल्कुल अच्छी तरह से, ताकि जो है they're ingrained in you, the concepts are there with you, ठीक है, and you're confident about them. Regarding the low yield topics, don't think that if it's a low yield topic तो ये पेपर में नहीं आएगा. This will definitely come, ठीक है. The the uh, the the frequency of the questions coming per year might not be इतना ज़्यादा, ठीक है. So for example, let's say हमारे पास यहाँ पर the biology का chapter है, तो the biology के chapter में से hardly एक सवाल आया होगा पिछले 2 सालों में, तो इसलिए वो लेस इंपॉर्टेंट कर दिया. However, biological molecules जो है उससे 4 सवाल आ गए होंगे पिछले 2 सालों में. So this is how you need to think, and this is how you need to strategize your entire pathway. So this is a list of topics. You may take a screenshot if required, and Premed also distributes this PDF, I believe, in the student body, so in their groups. So you should definitely go over these. And what I'd especially suggest would be कि जो high yield chapters हैं ये mostly मोटे chapters होते हैं, तो go over them first, ठीक है, because then you will have more time to apply that knowledge into questions जो आप आगे जाके solve कर रहे होंगे, and you will have more time for revision अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया. And उसके बाद follow with the lower yield ones. I think we can move ahead. Okay, so science and maths reasoning. Science reasoning does not have a set syllabus. ठीक है, science reasoning के अंदर कुछ भी आ सकता है, and I'll elaborate it on it in a bit. So maths reasoning के जो कुछ very important chapters हैं, जो yield वाले high yield वाले chapters होते हैं, वो यहाँ पे list हुए हैं, जैसे percentage है, ratio है, etc. So Abdullah previously mentioned कि आपको अपने जो है ratios, which is also fractions in a way, आपको उसको बिल्कुल सही से, मतलब उसको रट्टा तो कह रहा हूँ, रट्टा तो नहीं मार सकता मैथ्स का, बट यू हैव टू डू इट रियली वेल. तो जो है these are the topics that your concepts must be clear upon, ठीक है. Go over YouTube, go over SAT की books, ठीक है, and try and build your concept. अगर आपको कोई चीज SAT की book से समझ में नहीं आ रहा, आप YouTube से देख लो, but your question answering strategies and your question answering mentality, what you're thinking जब आप एक question को देखते हैं और उसको solve करने की तरफ चलते हैं, that should be very clear, ठीक है. You need to know कि अच्छे से ये ratio का सवाल है, मुझे ये करना होगा ताकि मैं इस आंसर पे पहुंच जाऊं. अगर सेट्स का सवाल है, दिस इज वेन डायग्राम, दिस इज अ वेन डायग्राम, उसके अंदर ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है, सही है, दिस मींस दिस. You need your concepts clear because AQ के टेस्ट के अंदर you do not have a lot of time. So you need to be very quick and with your mathematics, especially because उसमें calculations भी सही मतलब ज्यादा आती हैं थोड़ी सी comparatively. साइंस रीजनिंग का कोई सेट सिलेबस होता नहीं है. यहाँ पर इन्होंने साइंस रीजनिंग के साथ यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज साइंस रीजनिंग के अंदर मोस्टली मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, राइट. सो साइंस रीजनिंग के अंदर दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन ट्रिग्नोमेट्री, व्हिच आई वेरी वेल रिमेंबर. हमारे एक सवाल आया था with regards to bearings and trigonometry. Bearings is a part of trigonometry. So basically ये आया था. And then there were also questions regarding physics and chemistry. तो जो है इसीलिए you need to have your concepts for your sciences, the science portion, that is biology, chemistry, physics, very, very clear to, excel in your science and math, science reasoning especially. Maths reasoning, once you're done with your maths ka entire syllabus, so it's going to be comparatively very easier for you to go over the science reasoning, and if you're done with your science ka syllabus really well. So as Hassan bhai previously mentioned ke A levels ka critical thinking ka paper bhi hota hai, you may go over that. I personally did not find a lot of related questions uske through, but a lot of people find those helpful as well. So in case you want to practice science reasoning from an other resource like A levels ki resource, okay, you can try that out. But then
obviously stick to answering MCQs and doing MCQs, because that's where you will see questions that are very high yield, and the questions जो बहुत ज़्यादा important हैं, और it's very important for you to understand what's going on in that question. So I believe that's it from my end. I hope everything's clear, and I hope I've covered everything. If there are any questions, you may ask them in the chat. Over to Hassan. Thank you, Abdul Rahman. So I would like to thank Vansh, Abdullah, and Abdul Rahman for covering all the aspects of the AQ exam so well. It's not an easy exam. I understand completely. To a lot of users, it's the first time वो negative marking देख रहे होंगे, तो काफी परेशानियां होती हैं. So this is why we held this webinar, and if you have any other questions, you can always add them in the comment box. ये live video है, we'll also share the recording of it, and उसके बाद you can also add your questions in the comment box. Make sure to join our AQ guidance group. वहाँ पे you can ask questions. We tell the most recent and update news about the AQ test as well. And इसके साथ में the last surprise जो मैंने promise किया था शुरू में, so let's discuss that as well. So सबसे पहले तो ये है कि I hope all of you are done with your exams. सही है ना? अब मसला ये आ रहा है कि बच्चे कह रहे हैं सर, जो कराची वाले हैं बोर्ड वाले, वो कह रहे हैं कि सर हमारे एग्जाम थोड़ा डिले हो गया है, व्हाट डू वी डू. देन द अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर अब हमारे पास बहुत कम टाइम है, सो व्हाट डू वी डू. सो वी सॉर्ट ऑफ have been doing this for a very long time, but अमूमन तौर पे ना जो AQ टेस्ट होता है थोड़ा लेट होता है, इस दफा थोड़ा जल्दी हो रहा है. सो उसके लिए हमने एक स्पेशल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एक कोहॉर्ट बनाया है, ताकि जो बच्चे struggle कर रहे हैं, who don't know how to start, who are looking for resources, who need that guidance and motivation, हम उन सब के लिए एक बेहतरीन कोहॉर्ट ला रहे हैं, which is our private university cohort, जो पढ़ाएगा बच्चों को specifically for the AQ test and Ziauddin. So Ziauddin will be more towards the end of the entire cohort, but AQ will be the highest preference for this entire cohort. अब ये क्या है सेशन, ये क्यों हम करवा रहे हैं, क्या रीजन है, आपको थोड़ा समझाता हूँ. सो द पॉइंट बीइंग कि देखिए, जो मैंने पूरा आपको रीजन दिया कि भाई AQ को जो टेस्ट है ना, वो बहुत एक अलग एग्जामिनेशन है. सही है ना? यू कैन हैव, आई हैव सीन माई सेल्फ, नॉट जस्ट कि मैं वैसे स्पेकुलेट कर रहा हूँ. आपके पास 4 स्टार हो, 5 स्टार्स हो A levels में, your FSC score is near 1100, it can be there. So again, but I've seen people get rejected bilkul flat outright. The reason is because they don't know how to prepare for the AQ test in the right way. Number one, they don't know. Number two, how to, for example, use resources effectively. Number two, और तीसरा time management, जो अब्दुल रहमान ने बहुत बेहतरीन तरीके से cover किया. So what we need to understand is कि यार ये सब practice के ना थ्रू आता है. So अगर आपको मैं बोलूँ कि यार आज जब जाके AQ का टेस्ट है तो you will not ace it at all because आपकी practice नहीं होगी. But 1.5-2 महीने बाद इंशाल्लाह when you guys all go for the exam, through our cohort आपकी इतनी practice हो गई होगी कि आप जब जाओगे will be like second nature. Because हमारे cohort में हमने देखा है कि यार जो चीज़ें requirement है, टीचर्स कौन है? टीचर्स वो हैं जिन्हें AQ का टेस्ट क्लियर किया. नंबर वन. भाई हमारा कंटेंट क्या? कंटेंट वो है जो एक्चुअली AQ के एग्जाम में आता है. तो हमारे पास जो मॉक पेपर्स बने हुए हैं, जो प्रैक्टिस पेपर्स बने हुए, देयर ऑल उस तरह के क्वेश्चंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये AQ एग्जाम में आ सकते हैं. और पिछले सालों में ऐसा हुआ भी है कि हमारे जो मॉक पेपर्स हैं उनमें से सवाल रिपीट हो जाते हैं कभी कभी, बिकॉज द रिसोर्सेज आर द सेम. तो यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि एक तो हमारा जो क्यू बैंक है AQ का, उसमें 8 तो फ्री AQ के मॉक पेपर्स है, वो तो जाके जरूर कर लो. सही ना? इट्स गोना टेक टाइम. नेगेटिव मार्किंग है, डू इट इन द राइट एग्जाम सेटिंग. कि मतलब आप बैठो, लैपटॉप पे बैठे हो, फोन पे कर रहे हो, अपने डाइनिंग रूम में जाओ, जहां भी जा रहे हो, ऐसा ना हो कि शोर मच रहा हो, आप पेपर कर रहे हो. आपको फुल उसको एग्जाम सेटिंग में करना है. एक टाइमर लगाओ साथ में, हमारे वैसे भी प्रीमेड पे टाइमर लगा हुआ है, तो आप बस बैठ के करो कि मुझे इतने टाइम में करना है. एंड अगर फॉर एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन रह गए तो रह गए, ऐसा ना हो कि उसको डिले करो. नहीं, 5 क्वेश्चन रह गए, काउंट करो कितने मार्क्स आए. नेगेटिव मार्किंग देखो, हमारे पास नेगेटिव मार्किंग भी इनकॉर्पोरेट हो रही है. इसके साथ में क्या है भाई, हमारे पास हर बच्चे के लिए हम पूरी की परफॉर्मेंस से मेजर करते हैं. वी अंडरस्टैंड कुछ जो बच्चे हैं जो इंटर वाले हैं, दे स्ट्रगलिंग इन मैथ्स एंड SR. जो A लेवल वाले हैं वो कह रहे हैं यार हमने साइंसेस में क्या बिगाड़ दिया था कि अब हमें फॉर एग्जांपल PTB या फेडरल की बुक करनी पड़ रही है. दैट्स ओके. हम आपको वो कंटेंट, वो सिलेबस पढ़ा रहे हैं जो AQ का है. तो अगर आप A लेवल के बच्चे हो, FSC के बच्चे, डजंट मैटर, यू कैन कवर इट वेरी वेल. एक तो ये. दूसरा है कि टॉपिकल, वीकली एंड मॉकली टेस्ट. तो भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. मैं अभी से बता रहा हूँ, जो बच्चा दबा के क्वेश्चंस करेगा हमारे क्यू बैंक के, MD कैट क्वेश्चंस के, दे विल बी गेटिंग इनटू AQ, they will be getting into the best medical university in Pakistan as well. You have to make sure कि यार जितनी प्रैक्टिस कर सको,
The reason why we've added 50,000 questions is because we've run the stats. We've seen कि यार जो बच्चे हमारी वेबसाइट पे 20,000 क्वेश्चन से ज्यादा करते हैं उनका 170 प्लस MD कैट में कंफर्म होता है। और अगर आपको MD कैट की भी साथ साथ तैयारी करनी तो एक काम करो, क्वेश्चंस करो। एक चैप्टर पढ़ लिया, स्पेंड मे बी 2 hours ऑन अ चैप्टर, उससे ज्यादा नहीं लगाओ, बिकॉज आप फिर ना रिटेन कुछ भी नहीं कर रहे हो। बैठ के क्वेश्चंस करो, दिमाग लगाओ कि यार अब मैंने पढ़ा है, इसका क्या आंसर है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। इस तरह आपकी बेहतरी हो जाएगी। वी हैव गाइडेंस ग्रुप्स, तो वी हैव स्पेशल गाइडेंस ग्रुप जहाँ पे वी हैव ऑनलाइन सेशंस। हमारे पास हर हफ्ते समीर हमारे एक स्टूडेंट है AQ में, ही कम्स एंड टेल्स स्टूडेंट्स कि यार इस तरह पढ़ना है, टाइमिंग किस तरह करनी, मोर इन डिटेल एंड डेप्थ। तो वो जब भी मिलेगा जब आप फॉर एग्जांपल कोहॉर्ट को ज्वाइन करोगे। तो गाइडेंस सेशन भी है, गाइडेंस ग्रुप भी है। इसके साथ में चैप्टर नोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं कि सर हम कहाँ से शुरू करें तैयारी करना, उनके लिए हमने स्पेशली बनाए हैं चैप्टर नोट्स कि यार आपको कोई और किताब खोलने की जरूरत नहीं है, बस ये चैप्टर नोट्स खोलो, आपको यहीं से सारे फैक्ट्स पढ़ने हैं। जो फैक्ट डिफर कर रहे हैं कि पंजाब में ये लिखा है, फेडरल में लिखा है, वो भी हम कवर कर लेते हैं। MD कैट क्यू बैंक मैंने बताया। सो आज जो हमारा वैसे ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक है, सो जो प्रीमेट की वेबसाइट है उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम से चीजें हैं, तो उसके अंदर हमारे पास वैसे क्वेश्चन डले हुए हैं। देयर आर मॉक पेपर्स, there are subject wise questions, there are our own questions जो हमें लगता है कि यार ये बच्चे को करके जाने चाहिए, सही है ना। और इसके साथ में there's also जो MD कैट का पूरा क्यू बैंक है, उसमें बच्चों की जो तैयारी होती है, मैं बता रहा हूँ कि यार अगर एक चैप्टर आप नहीं पढ़ पा रहे हो किताब से, टाइम नहीं मिल रहा, शौक नहीं किताब यूज करने का, सिंध की किताब तो चेंज हो गई आजकल, बट पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, तो बस क्वेश्चंस करो, दिन के 200 300 400 आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आप वो ज्यादा रिटेन करोगे। ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन हमारी ये है कि टिल द एंड ऑफ द AQ का जो टेस्ट है वो एक दिन पहले हम तैयारी करवा रहे होंगे, बच्चों को फुल मोटिवेट करके एग्जाम में भेज रहे होंगे, पूरा उनको एग्जाम सेटिंग बता रहे होंगे, उनको बताएंगे कहाँ बैठना है, किस तरह करना है, क्या शेड करना है, किस तरह मार्क करना है, किस तरह बाहर निकलना है, किस तरह सब कुछ करना है, किस तरह इवन रिजल्ट चेक करना है। दैट्स ऑल कवर्ड बाय अस। आपको कोहॉर्ट ज्वाइन करने की जरूरत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अरीबा। हाँ, तो अब भाई इसके साथ में अब बच्चे बोलेंगे सर MD कैट के लिए क्या करें। तो MD कैट के लिए भी हमने, जो बच्चा AQ का टेस्ट नहीं देना चाह रहा, उन्हें बोला यार हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम नहीं दे रहे, हमने पोर्टल के लिए साइन अप नहीं किया, तो एक सिमिलर हमने कोहॉर्ट शुरू कर दिया अभी से फॉर द MD कैट। इसका नाम है परवाज MD कैट। जो बच्चे AQ का टेस्ट दे रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि पहले आप AQ के लिए जान लगाएं, परवाज MD कैट को भूल जाए। बट जो बच्चे सिर्फ MD कैट पे फोकस करें, उनके लिए बहुत जरूरी है कि ये MD कैट के कोर्स पे फोकस करें। इससे क्या होगा कि यार अभी से आपकी जो MD कैट की तैयारी है, थ्रू लाइव लेक्चर्स, थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, थ्रू गाइडेंस, एक दो चीज आपको बताता हूँ तो आपको आइडिया हो कि यार किस तरह फॉर एग्जांपल डिफर करता है अगर आपके पास गाइडेंस नहीं हो। व्हेन आई वेंट फॉर माय एग्जाम द सेकंड टाइम ना, मैंने रीअप्लाई किया था AQ, तो मुझे MD कैट वापस देना पड़ा था। तो मैं एक दफा एग्जाम दे चुका था, एग्जाम भी गया ना, तो वो कहते हैं हमारे इन्विजिलेटर कि आपको ना जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको पेंसिल से मार्क करना है। आई वाज लाइक है पेंसिल से सर, पेन से होता है? कहते नहीं पेंसिल से। एंड बच्चे परेशान कि सर हम तो पेन लेकर आए, पेंसिल तो लेके भी नहीं आए। मैंने पूरा पढ़ा, उनको समझाया, मैंने बोला सर इधर आए, सर मैंने पहले दिया हुआ भी है एंड अच्छा नहीं बताया नहीं पहले, मैंने कहा सर इसका ना ये लिखा हुआ है कि पेन से करना है। तो कहता है आपने पहले दिया हुआ है? मैंने कहा जी सर दिया हुआ है, तभी बोल रहा हूँ। तो यार अगर वो बच्चे मेरे जो कमरे में थे ना ड्यूरिंग कोविड, तो 2020 में तो सारे जो एग्जाम थे ना, एवरी रूम लेकिन एवरी स्कूल यूनिवर्सिटी वाज लाइक अ एग्जाम सेंटर। तो मेरे जो कमरे में सारे बच्चे थे, अगर वो पेंसिल से पेपर मार्क करते तो उनके तो लेकिन आराम से 0 आते एंड उनका उस साल एडमिशन नहीं होता। तो इस तरह की जो गाइडेंस है ना, ये आपको बहुत उस वक्त लग रहा हो कि हाँ यार ये तो किसी को नहीं पता। यार बच्चों को नहीं पता होती, एंड अगर पता भी है ना, वहां जाके अगर आपको इन्विजिलेटर ने ये बात बोल दी तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। ऐसा ना हो कि यार आई हैव सीन कि अगर बच्चे फॉर एग्जांपल सही प्रोविंस की किताबें नहीं यूज करते हैं, दे स्ट्रगल एंड दे डोंट गेट इनटू दैट ड्रीम यूनिवर्सिटी। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड मेक श्योर कि यार जो ये एग्जाम है ये आपका पूरा करियर चेंजिंग एग्जाम है। अगर MD कैट क्लियर नहीं हुआ तो शायद आप गैप ईयर लोगे, गैप ईयर के बाद क्लियर नहीं हुआ, then you might have to go to a different degree completely and your dream of becoming a medical student or a dentist or somewhere in the allied health sciences will be shattered. So you have to make sure कि आप उसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। अरीबा नेक्स्ट स्लाइड। राइट, सो जो हमारा सरप्राइज है, तो भाई बच्चे बोलेंगे यार आपका कोहॉर्ट कितने का होगा। अब मैं बताऊं यार, हमारा कोहॉर्ट इज नॉट लाइक किप्स which is charging over 50-60,000. It's not like Huser that's charging over 90,000. We've made this special cohort for all the students because मुझे पता है यार जो कराची वाले बच्चे हैं ना, जो A level निक्सर लाइसियम केजेस, वो तो अफोर्ड कर लेंगे। आप बोलोगे यार उनके लिए तो आपने आसान कर दिया। जो असल गेम है फॉर पीपल लाइक फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान, जो एक चांस लेना चाह रहे हैं विद एडमिशन इन AQ, उनको
AQ आए, तो हमने उनके लिए कोहॉर्ट की प्राइस स्पेशली कम रखी है कंपेयर टू ऑल द अदर कंपेटिटर्स, और इसके साथ हम एक और डिस्काउंट कोड भी दे रहे हैं। इसकी वजह से जो एक कोहॉर्ट है ना, जनरली यार अगर आपने AQ की फीस दी है, जो एप्लीकेशन फीस थी, इसके साथ में अगर आप फॉर एग्जांपल AQ आना चाहते हो, आई थिंक दिस कोहॉर्ट इज 100% वेरीफाइड थिंग फॉर यू कि आपका इससे बहुत चांस हैवी हो जाएगा। आपको 2 नंबर्स बता दूं, लास्ट ईयर जो हमने इस तरह का कोहॉर्ट किया था, तो जो 100 बच्चों का ना एडमिशन हुआ था AQ में, उनमें से 35 ने हमारा कोहॉर्ट लिया ही लिया था। सही है ना, मतलब उनको हमने जनरली हाथ पकड़ के एडमिशन करवाया था। दे मीट मी एंड देयर लाइक यार हसनैन भाई, अगर आप नहीं होते, अगर प्रीमेड नहीं होता, अगर वो कोहॉर्ट नहीं होता, तो हम लोग आज यहाँ बैठे नहीं होते। एक ये, और उससे पहले वी हेल्प्ड अराउंड 30 किड्स, over 30 kids actually get into AQ through our cohorts. So our cohorts are trusted and verified and they're successful. Why? Because being an AQ student, I know क्या requirement है, बच्चों को किस तरह तैयारी करनी है, and हम बच्चों को वही ऑफर करते हैं। So हम 25% डिस्काउंट दे रहे हैं। So on this entire cohort, हमने जो कमेंट बॉक्स है उसमें एक लिंक शेयर कर दी है, आप ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैं अपना जो पर्सनल नंबर है वो भी शेयर करूंगा, आप वहां पे मैसेज कर सकते हो। तो इससे ये जो कोड है CU in AQ, इट्स ओनली वैलिड फॉर 2 days। सो आज रात और कल रात में ये बंद हो जाएगा, तो उससे पहले ये कोहॉर्ट खरीद लो, बिकॉज टाइमिंग के अलावा भी वैसे भी एग्जाम इतना करीब है आपका कि यू कैन नॉट even like manage to wait 1 second। आपको 1 सेकंड भी जाया नहीं करनी यार। AQ जनरली एक अमेजिंग रिसोर्स है, एक अमेजिंग यूनिवर्सिटी है। मैं जब आया यहाँ पे मैंने रियलाइज किया कि यार बहुत डिफरेंस है कंपेयर टू ऑल द अदर यूनिवर्सिटीज। तो अपनी जान तो मेहनत करनी कि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड कि यार जो मैंने ये कूपन कोड जानबूझ के बनाया CU in AQ, ये इंशाल्लाह आप आज यूज करो, एंड देन अराउंड 6 months लेटर जब आपका एडमिशन होता है तो आप बोलते हो कि हे हसनैन भाई, आपने वो कूपन कोड बताया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एडमिशन हो गया। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर डील। कोई और सवाल हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क अस। द मैनेजर्स, the admins of the groups are Ariba, Hamad, मैं खुद admin हूँ। We will love to guide you and help you out, and inshallah thank you so much for attending the session. I hope all of you enjoyed. हमने 1.5 घंटे में wrap up भी कर दिया, and thank you to all of our panelists as well for coming in and speaking as well. Take care. Inshallah, see you in AQ. That's the coupon code as well, and my prayer and my duas for all of you कि आपको inshallah मैं AQ में देखूं. Thank you so much. Allah Hafiz.